Hello, students. Welcome you all to our new chapter, that is chapter number 5, Periodic Classification of Elements. Students, today we are starting with our new chapter, that is Periodic Classification of Elements. First of all, students, we all know that matter around us is present in three forms, that is element, compounds and mixture. You must have studied this in our ninth standard, that matter is in the form of element, compound and mixture. Okay, out of this element, what do you mean by elements? Elements are the type of matter which contains atoms of only one type. Yes, elements are made up of atoms of only one type. Okay, at present there are in all 118 elements known to us. How many elements? 118 elements known to us. Out of this 118, only 94 elements are naturally occurring. Out of 118 elements, only 94 elements are naturally occurring. So what about the remaining elements? Remaining elements are synthesized in the laboratories. Yes, remaining elements को artificially prepare किया गया है, synthesize किया गया है. बाकी out of 118, 94 elements जो हमको nature से मिले. Okay, students. Now let us start our topic, that is classification of elements. As the name of the chapter itself gives, the name of the chapter is periodic classification of elements. तो इसमें हम पहले बात जान लेते हैं कि what do you mean by classification of elements? The arranging of elements into different groups on the basis of the similarities in their properties is called classification of elements. Out of all the elements known to you, you are arranging the elements into different groups. हम अलग अलग ग्रुप्स में एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं और किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज. मतलब कुछ एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज सेम है तो उनको एक ग्रुप में रखा है, कुछ के प्रॉपर्टीज सेम है तो उनको दूसरे ग्रुप में रखा गया है. ओके, तो इन दिस वे वी आर अरेंजिंग द एलिमेंट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स on the basis of the similarities in their properties, and that is called classification of elements. The classification of similar elements in groups makes the study of elements easier. इससे क्या होता है कि हमने एक ग्रुप में उन्हीं एलिमेंट्स को रखा है जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है. ओके, तो उन सब का एलिमेंट्स का हम लोग एक साथ स्टडी कर सकते हैं. ओके, सो देर आर अबाउट हियर दे आर रिटन 114 बट इट इज़ एक्चुअली 118 एलिमेंट्स नोन सो फार. जो मैंने आपको आज स्टार्टिंग में बता दिया दैट देर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स नोन टू अस, आउट ऑफ विच 94 आर नेचुरली occurring. Okay, now let us go for the next topic, that is early attempts at classification of elements. एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए किस किस ने क्या क्या अटेम्प्ट्स किए. लेट अस सी. द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स वाज ग्रुपिंग देम into what? Into metals and non-metals. At that time nearly only 30 elements were known. जो आज के दिन में 118 एलिमेंट्स थे, तब के ज़माने में सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे. ओके, उन 30 एलिमेंट्स, जितने भी नियरली 30 एलिमेंट्स थे, उनको दो ग्रुप में क्लासीफाई किया गया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, बट व्हाट वाज द डिफेक्ट इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन? एलिमेंट्स को जब क्लासीफाई कर ही दिया मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो इसमें दिक्कत क्या आई? द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वॉज दैट इट हैड नो प्लेस फॉर मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वी ऑल नो दैट इज सेमी मेटल्स. ओके, मेटलॉइड्स के पास प्रॉपर्टीज, दिस सेमी मेटल्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, तो इन मेटलॉइड्स के लिए कोई प्लेस नहीं था उस क्लासिफिकेशन में. ओके, सो दिस वाज द डिफेक्ट ऑफ क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. Why? Because when the semi metals were discovered later, there was no place for that semi metals in this group. Okay, so this was the earliest attempt of classifying the elements. Then comes the other persons who classified the elements. Now comes the first scientist, initial scientist who tried to classify the elements. Okay, he is known as what? Dobereiner. In the year 1857, students, you have to refer page number 79 of your NCERT textbook. Page number 79 पे आप देखोगे Dobereiner's triads. The topic is Dobereiner's triads. In the year 1817, Johann Wolfgang Dobereiner, full name क्या है? Johann Wolfgang Dobereiner, a German chemist, tried to arrange the elements with similar properties in groups. He has tried to arrange the elements into what? Groups. He identified some groups having 3 elements each.
उसने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया. सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप्स एज ट्रायड्स. TRIADS. Triads means what? Group of three elements. Triads means what? Group of three elements. उसने तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और एक ग्रुप में जो तीन एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी सेम थी. ओके, तो व्हाट ही डिड, डॉबरिनर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses into groups of three elements called triads. Can you see the first triad in this table? Lithium, sodium and potassium. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को उसने एक ग्रुप में रखा और इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस. देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 6.9 नियरली. सोडियम का कितना है, 23. और पोटेशियम का क्या है, 39. सो द एटॉमिक मासेस आर इंक्रीजिंग. So he has arranged three elements in a triad in the increasing order of their atomic masses. And what is the speciality of this triad? That in each triad the atomic mass of the middle element, जो बीच का एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा ना, it will be approximately equal to the average atomic masses of the other two elements. Means what? Out of the three elements, lithium, sodium, potassium का एग्जाम्पल लेते, उसमें आप फर्स्ट वाले और थर्ड वाले का एटॉमिक मास को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो. मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, एवरेज निकाल रहे हैं. ओके, हाउ कैन वी कैलकुलेट एवरेज? बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट एंड देन बाय डिवाइडिंग इट बाय 2. सो इट इज 6.9. सपोज मैं 6.9 को मैं 7 ले लेता हूँ राउंड फिगर करके. 7 + 39. 7 + 39 इज हाउ मच, 46. और उस 46 को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 23. और देखो सोडियम का एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेटली 23 आ रहा है. इन्होंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन शो किया है. 6.9 को 39 से ऐड किया, मतलब 45.9. 45.9 को 2 से डिवाइड किया तो 22.95. और 22.95 क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 23 होता है. तो वो किसका, सोडियम का एटॉमिक मास है. सो अकॉर्डिंग टू डॉबरिनर ही हैज़ क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू अ ट्रायड वेयर द atomic mass of the middle element is the average of the atomic masses of the first and the third elements. Understood? तो इस तरह से उसने कितने ट्राइड्स बताए, 3 ट्राइड्स बताए. एक पहला ट्राइड किसका है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. द सेकेंड ट्राइड इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. एंड द थर्ड ट्राइड इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इन दिस वे डॉबरिनर हैज आइडेंटिफाइड 3 triads. But what is the major limitation or drawback or defect of this type of classification? डॉबरिनर ने जो ये लॉ दिया, ओके, उसका मेजर डिफेक्ट क्या है? The defect in this classification was that all the then known elements could not be correctly arranged into triads. उस समय, that is in the year, in which year? 1817 sorry. In 1817 when he tried to arrange the elements, at that time there were some elements known to him, nearly 40-50 जितने elements known थे. Okay, but he could only form 3 triads out of those. मतलब खाली 9 elements को arrange कर पाया. He could not arrange the remaining elements in the form of triad. उसका ये जो लॉ था वो खाली कुछ ही एलिमेंट्स के लिए लागू हो रहा था, बाकी एलिमेंट्स में वो लॉ फॉलो नहीं हो रहा था. सो दिस वॉज द मेजर ड्रॉबैक. Hence this system of classification into triads was not found to be useful. Why it was not found to be useful? Because it cannot be applied to all the elements known at that time. तो जब वो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता तो फिर इसका क्या फ़ायदा. सो हियर द डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड फेल्स. ओके स्टूडेंट्स, आपको हर एक लॉ का स्टेटमेंट याद करना है, लॉ, बाद में उसका लिमिटेशंस याद करना है और इसके एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं. लॉ याद करने का, एग्जाम्पल्स याद करने का और इसके लिमिटेशंस, व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ दैट लॉ, वो हमको लर्न करना है. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट नाउ. Now our next topic is Newland's law of octaves. Newland's law of octaves. It is on page number 80 of your NCERT textbook. Okay. The attempts of Dobereiner encouraged other chemists to correlate the properties of elements with their atomic masses. Dobereiner ने कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, है ना. लिथियम, सोडियम और जो तीसरा था क्या, पोटेशियम, उसमें लिथियम का कम एटॉमिक मास था, सोडियम का उससे ज़्यादा, पोटेशियम का उससे ज़्यादा. He arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. So all other scientists, all other chemists got the boost up. They were encouraged and they also started arranging the elements in the increasing order of their atomic masses. In the year 1866,
इन द ईयर 1866 स्टूडेंट्स यू हैव टू रेफर टेक्स्ट बुक फॉर द ईयर्स एंड इन डिटेल। यहाँ पर आपको पिक में खाली मेन चीज़ दिखाई देगी, मेन लॉ और एग्जाम्पल, बट पूरा डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1866 जॉन न्यूलैंड्स एन इंग्लिश साइंटिस्ट मीन्स ब्रिटिश, इंग्लैंड का है, arranged the then known elements in the increasing order of their atomic masses. Newland also arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. He started with the element having the lowest atomic mass. And which element has the lowest atomic mass? That is hydrogen. Okay, and ended at thorium, which was the 56th element. है ना, उसने शुरू कहाँ से किया? हाइड्रोजन से, और कहाँ तक पहुँच गया? थोरियम तक, विच वॉज द लास्ट एलिमेंट विच ही न्यू। तो टोटली हाउ मेनी एलिमेंट्स ही अरेंज्ड? 56 एलिमेंट्स, मतलब उस जमाने में तभी खाली 56 एलिमेंट्स नोन थे। तो while arranging the elements in the increasing order of their atomic masses, he found that every eighth element had the properties similar to that of the first element. मतलब जब पहला एलिमेंट आपके पास है, जैसे देखो आप टेबल में देख सकते हैं, पहला एलिमेंट क्या है? हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद जब फ्लोरीन आया, ओके, फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज वो किससे कंपेयर कर रहा था? हाइड्रोजन से। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन से मैच हो रहा था। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर उसके बाद क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन की प्रॉपर्टीज किससे मैच हो रही थी? फ्लोरीन से। ओके, तो उसने क्या देखा कि हर 7वें एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट था, एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, अगर आप हाइड्रोजन से शुरू करते हो तो 8वां एलिमेंट क्या? फ्लोरीन, फिर इसके बाद 8वां एलिमेंट क्या? क्लोरीन। इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम। अगर आप लिथियम को पॉइंट आउट करो तो लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट क्या आता है? सोडियम, और सोडियम के बाद 8वां एलिमेंट क्या आता है? पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का भी प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। सो इसमें क्या देखा आपने कि दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ओके, ये किस तरह से है? हमारे हिंदी म्यूजिक में, हमारे इंडियन म्यूजिक में आपने देखा है ऑक्टेव्स होते हैं। ऑक्टेव्स मतलब सुर, है ना। 7 सुर के बाद जो 8वां सुर होता है ना, वो सेम होता है। जैसे सा रे ग म प ध नी, नी यानी कितना हो गया? 7 हो गए। फिर से हम सा बोलते हैं, फिर से मैं रिपीट करूँ मैं, सा रे ग म प ध नी सा, सा रे ग म प ध नी सा। जो लास्ट वाला सा है वो 8th सुर है, और वो 8वां सुर किसको कंपेयर कर रहा है? पहले वाले सा को कंपेयर कर रहा है, फर्स्ट सुर। ओके, तो इसको ऑक्टेव्स बोलते हैं। ऑक्टेव्स मतलब 8वां सुर जो है वो पहले सुर को रिजेंबल कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पे हर 8th एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट को रिजेंबल कर रहा है। सो दिस लॉ इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ओके, सो वंस अगेन स्टूडेंट्स, लेट मी रीड हियर। जॉन न्यूलैंड्स, एन इंग्लिश साइंटिस्ट, arranged the known elements in the increasing order of their atomic masses and called it the law of octaves. It is known as Newland's law of octaves. So what is there in this Newland's law of octaves? It contained the elements from hydrogen to thorium, and the properties of every 8th element were similar to that of the first element. Okay students, now let us consider something about this Newland's law of octaves जो पूरा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। In Newland's octaves, the properties of lithium and sodium were found to be same. Lithium and sodium, can you see the second column? Lithium and sodium. सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। अगर आप लिथियम से शुरू करो तो लिथियम के बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर आता है सोडियम। ओके, तो लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट है सोडियम, एंड द प्रॉपर्टीज वेर सेम। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। सिमिलरली बेरिलियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर। आप बेरिलियम देखो और उसका 8वां एलिमेंट मैग्नीशियम देखो, उनका भी प्रॉपर्टीज सेम है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स was very a good type of classification at that time, but there are some limitations of Newland's law of octaves. So let us discuss the limitations of Newland's law of octaves. What are the limitations? The first limitation is that this law was applicable to the elements up to calcium only. ये कहाँ तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक। यू लुक एट द टेबल स्टूडेंट्स, या तो आप टेबल पीछे वाला टेबल देखो जो मैंने दिखाया था, या फिर टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 81, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 81, टेबल 5.3। ओके, यू कैन सी दैट कि हाइड्रोजन से शुरू होने के बाद कैल्शियम तक, कैल्शियम कहाँ पर है? 3rd कॉलम में है ना, कैल्शियम तक है ना, कैल्शियम तक ही ये लॉ एप्लीकेबल था। कैल्शियम के बाद से ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। The law was applicable to elements up to calcium only. Okay, and then next it contained only 56 elements.
इसमें खाली कितने थे 56 एलिमेंट्स विच एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। उसने ये एज्यूम कर लिया न्यूलैंड ने कि भाई नो मोर एलिमेंट्स विल बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। ओके, और उसके लिए उसने लेटर ऑन एलिमेंट्स में जो न्यू न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे उसके लिए कोई जगह उसने छोड़ी नहीं थी। I am reading from the textbook. It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the Newlands law of octaves. The next is, in order to fit elements into the table, Newlands adjusted two elements in the same slot and also put some unlike elements under same note. फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल, कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही पोजीशन पे दो दो एलिमेंट्स को अरेंज कर सके? नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने देखो दो दो एलिमेंट्स को सेम स्लॉट पे अरेंज किया। जैसे कोबाल्ट और निकल को देखो क्लोरीन के नीचे रखा है। सिमिलरली सिसियम एंड लैंथनम, उनको भी उसने क्या किया, एक ही स्लॉट पे रख दिया। ये भी एक उसका फेलियर है, कोई एक पोजिशन पे एक ही एलिमेंट आने चाहिए। ओके, एंड दूसरा, एंड दीज आर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। और ये कोबाल्ट और निकल है, कोबाल्ट निकल को किसके कॉलम में अरेंज कर दिया उसने? फ्लोरीन, क्लोरीन और इसके नीचे ब्रोमीन। वी ऑल नो दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दे आर हैलोजेंस। हैलोजेंस मीन्स इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैलेंसी -1 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, है ना, और वो नॉन मेटल्स बनेंगे। एंड कोबाल्ट एंड निकल वी आर नोन एज दे आर स्ट्रॉन्ग मेटल्स। ये तो मेटल्स है कोबाल्ट और निकल, तो मेटल्स को नॉन मेटल्स की लाइन में अरेंज कर दिया उसने। ओके, देन वन मोर लिमिटेशन इज दैट अबाउट आयरन। आयरन की प्रॉपर्टी किससे रिजेंबल होती है? कोबाल्ट और निकल, बिकॉज कोबाल्ट, निकल, आयरन दे आर ऑल व्हाट? मेटल्स। बट आयरन को वेरी फार, इट हैज़ बीन प्लेस्ड डिफरेंटली वेरी फार फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। आयरन को देखो कहाँ पे रखा है, Fe को लास्ट कॉलम में, ऑक्सीजन सल्फर के साथ आयरन को अरेंज कर दिया। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल्स, ओके, और उसके नीचे आयरन मेटल को अरेंज कर दिया। तो उसने अरेंज तो किया प्रॉपर्टीज़ को, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और वो देखो ऑक्सीजन सल्फर की प्रॉपर्टी सेम है, बट नीचे उसके नीचे आयरन की प्रॉपर्टीज से अलग हो गई। सो इससे क्या पता पड़ रहा है कि न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था खाली कैल्शियम तक वैलिड था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बरोबर है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी बरोबर है ना, वहाँ तक बरोबर था। उसके बाद से उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वैलिड नहीं हो रही थी। सो दिस वेर द limitations of Newland's law of octaves. One more limitation students, with the discovery of noble gases. What are noble gases? जिनका ऑक्टेट जो है सारे इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है फिल्ड है, तो दे आर नोन एज नोबल गैस। दे कैन नॉट डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन्स। उस समय नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो फिर ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में उसको कहाँ अरेंज करेंगे? टेबल में कहीं पे जगह ही नहीं है नोबल गैसेस की। सो उसके लिए विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बिकेम इररेलेवेंट। ओके, ये इररेलेवेंट हो गया, मतलब एकदम ना के बराबर, ये लॉ अभी हम लोग यूज़ कर ही नहीं पा रहे थे। Thus, Newland's law of octaves worked well with the lighter elements only. Lighter elements मतलब हल्के एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास कम है, कैल्शियम तक के एलिमेंट्स में ही ये काम आया, उसके बाद से ये काम नहीं आया। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रिपेयर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उनका लॉ प्रिपेयर करना है, टेबल आपको प्रिपेयर करना है, और इसके बाद उसके लिमिटेशंस तो आप लोग स्पेशली टेक्स्ट बुक में से करना, पेज नंबर 81 एकदम क्लियरली और डिटेल में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, so students, by this we end our today's session. Today we started with our chapter that is periodic classification of elements, where we have seen that how many elements exist in the nature. Then we started about classifying the elements into various categories. Okay, पहले कैसे उसको metals and non-metals में classify किया. Then we saw about Dauber-Inner's triads, and then we saw about Newland's law of octaves. कोई भी लॉ स्टडी करते हैं तो साथ साथ में उसके एग्जाम्पल्स और साथ साथ में उसके लिमिटेशंस, दिस ऑल थिंग वी हैव टू स्टडी. ओके स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द फर्दर टॉपिक्स. टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स.